Hello everyone. So let us start with the Parliament chapter. And it is a very long chapter, so we will try that we just focus on the important topics along with the PYQs, and we'll try to wrap up it in the 40 or 45 minutes. Then we will move towards the state legislature. Okay. So the very first question is, if I say that there is a parliament, so it includes what? Like parliament is comprised of. Lok Sabha, Rajya Sabha President. Yeah. Okay, so it includes President, Lok Sabha, and Rajya Sabha. Then Article 79 to 122 in the Part 5 of the Constitution deals with the Parliament का जितना भी system होता है in India. We have a model called as Westminster model of the government. Then what is the basic premises of the parliamentary government? Like, what is the meaning of this? Dead government. So basically, when executives are responsible to the legislature, so that in that manner it is called as a parliamentary form of government. But when both are not like responsible to each other and they work in their different spheres, altogether the different spheres, so in that case we call it as a presidential form of the government. Okay, so we have two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. So like 1954 जो थे 1954 के बाद से we have adopted these Hindi names. Okay, Rajya Sabha and Lok Sabha. So both are like one is upper house and another one is lower house. So what is the composition of Rajya Sabha? Like how many members are there and then how is the classification? From state and UTs and 12 are nominated. Correct. Okay, so 250 members. Okay, so 250 members are there, then 238 from the state and UTs. Okay, state and UT दोनों से होते हैं. Then 12 members are from the like nomination. Okay, and that is done by the president. So just remember that UTs are presented in the Rajya Sabha. Like there was a question in the PYQ series that like जो Rajya Sabha के members होते हैं, they are not represented in the UT. So UT वाले जो होते हैं, they are not represented in the Rajya Sabha. So that will be a false statement. The next is what is the first schedule? Like what is the subject of the first schedule? Union and its territory. Seats in Rajya Sabha. Union and its territory, I guess. Union and state. Actually, see, there is a difference between state, union, and territory, and the allocation of the seat in the union territory. Okay, like that is the schedule 1 जहाँ पे इन दोनों का mention है. But when we talk about the Rajya Sabha के अंदर जो seat का allocation है, so that is contained in the schedule 4. Yeah. Okay. Fine with all. Shall we move ahead? और कोई doubt है अभी तक तो we can clear it right now. एक अभी आप बता रहे थे ना कि सब लोकसभा टर्म है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना वैसे? No, like 1954 के बाद में हमने इसे adopt किया in the verbal sense, right? Okay, then moving towards the UT का representation history. Okay, पहले नहीं होता था, मतलब पहले भी था, अब भी है, ठीक है. UT का representation 12 members are there. So can anyone tell me कौन से sections से होते हैं 12 members? Literature, art, social service, science. Please speak one by one. Yes, please go ahead. Whosoever is speaking, just like speak one by one. It creates echo. Okay. या तो सभी चुप हो जाते हैं या सभी एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं. What is this? तो इसमें आर्ट होगा, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस या किसी भी फील्ड में कोई स्पेशल नॉलेज हो. Okay, so for services there would be the members. ठीक है, so those are art, literature, science and social services.
बट ऑन द कॉन्ट्री जो अमेरिकन सीनेट है वहां पे कोई भी ऐसा चाहिए प्रोविजन नहीं होता है नॉमिनेशन वाला. ओके, देन कम्स द लोकसभा. सो कैन एनीवन टेल मी द कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा? 30 स्टेट से होते हैं, 20 यूटी से होते हैं. मैक्सिमम मेंबर्स मैक्सिमम मेंबर्स 552 हो सकते हैं. हमारी उत्तर प्रदेश 30. ओके, सो रिमेम्बर इसमें भी नॉमिनेशन मतलब ये होता है इलेक्शन वाला होता है. ठीक है, इसमें भी यूटी रिप्रेजेंट होता है. जैसे जस्ट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट थिंग्स. जैसे जो यूटी है ना, यूटी का रिप्रेजेंटेशन दोनों में है. ठीक है, देयर वाज अ क्वेश्चन आई टोल्ड राइट नाउ ना कि एक बार क्वेश्चन था तो उसमें दिया था नहीं है. तो जस्ट रिमेम्बर दीज पॉइंट्स. ठीक है, थोड़े से ना लाइक चेरी पॉइंट्स है विच यू शुड रिमेम्बर. ओके, देन कमिंग टू द जो सिस्टम रहता है इलेक्शन का. ठीक है, तो क्या सिस्टम रहता है इलेक्शन का? जैसे जो लोकसभा होता है उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? इफ आई से लोकसभा में डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, देन False. It's direct election. लोकसभा okay. में डायरेक्ट इलेक्शन एंड yeah. राज्यसभा में इनडायरेक्ट. Perfect. Okay. So Rajya Sabha में there is an indirect election का provision and in Lok Sabha there is a direct election का provision. ठीक है. Okay. Then coming to the reservation of seat for SC ST, तो एक में है एक में नहीं है, क्या सिस्टम है? लोकसभा में रिजर्वेशन है, राज्यसभा में नहीं है. Correct. Okay, so Rajya Sabha में there is no provision of the reservation of seat, but unlike this, there is a provision in Lok Sabha. ठीक है. Okay. कोई भी डाउट करे तो प्लीज जस्ट उसी टाइम यू कैन टेल. ओके, वहीं पे डिस्कस हो जाएगा. नेक्स्ट इज अ ड्यूरेशन दोनों हाउसेस का. ठीक है, तो ड्यूरेशन क्या रहता है? अच्छा, उससे पहले एक और क्वेश्चन है आई हैव कि जैसे राज्यसभा का मेंबर जो होता है उसकी एज क्या रहती है और लोकसभा के लिए एज का कंसिडरेशन क्या है? 1 by 1 जो भी बोले प्लीज. लोकसभा 25 एंड राज्यसभा 30. परफेक्ट. ओके, सो लोकसभा में इट इज 25, राज्यसभा में इट इज 30. गवर्नर की एज क्या होनी चाहिए बनते टाइम? 35 एज होनी चाहिए. प्रेसिडेंट की 35, वाइस प्रेसिडेंट की अगेन 35. ओके, सो ये थोड़े थोड़े जो जो पॉइंट्स है ना जस्ट रिमेम्बर. ठीक है, अब चलते हैं ड्यूरेशन वाले पार्ट पे. तो जल्दी से बता दो कि ड्यूरेशन क्या होती है लोकसभा की एंड देन राज्यसभा की. लोकसभा की 5 साल होती है, राज्यसभा की 6 ईयर वैसे होती है और 1/3 हम 2 साल में चेंज होते रहते हैं. ओके, एनीवन एल्स वांट टू कंटिन्यू विद दिस? मतलब कोई बताना चाहेगा और कुछ इसमें? राज्यसभा उसके मेंबर का 51 टर्म होता है RP. and body. It's never dissolved. ओके, ठीक है. तो इफ आई से लोकसभा इज अ परमानेंट हाउस, ट्रू और फॉल्स? इफ आई से लोकसभा इज False. फॉल्स. ओके, राज्यसभा. yes. Okay, so राज्यसभा is a permanent house whereas लोकसभा isn't. ठीक है, तो राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम बना था 1952 में. तब से ये कॉन्टिन्यूइंग हाउस है. ये परमानेंट बॉडी है जिसका डिसोल्यूशन नहीं होता है. इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर सेकेंड ईयर में लाइक दे गेट रिटायर्ड. एंड यहाँ पे मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है. दे कैन बी री इलेक्टेड फॉर एनी नंबर्स ऑफ टाइम, देन दे कैन बी री नॉमिनेटेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम. लाइक देयर इज नो कंपल्शन कि दे कैन बी जस्ट इलेक्टेड फॉर द वंस और ट्वाइस. ठीक है, दे कैन गो फॉर एनी टाइम. ठीक है, देन नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा. सो दिस वी हैव आल्सो डिस्कस दैट दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर. ठीक है, ये कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, अनलाइक राज्यसभा. सो इसका नॉर्मल टर्म क्या रहता है? 5 years रहता है. ओके, बट president can dissolve it any time before the completion. ठीक है, and also it cannot be challenged in any court of law. अब for example if I say अगर आपको मेंबर बनना है पार्लियामेंट का तो what you should like ना सबसे पहले आपको क्या उसकी क्वालिफिकेशंस को accomplish करना होगा?
फिर उसने ओथ लिया होना चाहिए, सॉरी हाँ गोन सही है। राज्यसभा का मेंबर का 30 एज होना चाहिए और लोकसभा का मेंबर 25 एज का होना चाहिए, और बाकी जो क्वालिफिकेशन वो पार्लियामेंट के अंडर दी गई हुई है। जैसे कि पहली है रजिस्टर्ड होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉल में जहां से वो कर रहा है, लाइक इलेक्ट हो रहा है, और वो अगर एसटी रिजर्वेशन में सीट चाहिए उसे तो वो एसटी एससी का मेंबर होना चाहिए। ओके, सिटीजन भी होना चाहिए, ठीक है, ये आपने पॉइंट एक मिस कर दिया, सिटीजन होना चाहिए एंड उसकी इलेक्शन रजिस्टर्ड वाला पॉइंट आप सुन नहीं पाए। रजिस्टर्ड वाला पॉइंट नहीं है वैसे ना, सुन नहीं पाया मैं आपको। इनमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, पहला सिटीजन, दूसरा ओथ, तीसरा एज का है, और चौथा क्वालिफिकेशन है कि पार्लियामेंट के अंदर 2 क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। अब पार्लियामेंट के अंदर जो 2 क्वालिफिकेशन है वो है कि रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए, और दूसरा अगर उसको रिजर्वेशन की सीट चाहिए तो वो एसटी एससी का मेंबर होना चाहिए। ये ऑल टोटल 6 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें से 4 कॉन्स्टिट्यूशनल है और 2 आरसीए के अंडर। रजिस्टर इलेक्टोरल कहाँ का होना चाहिए? इंडिया में कहीं का ना? रजिस्टर्ड, हाँ पूरे इंडिया में कहीं भी रजिस्टर्ड होगा तो चलेगा, नॉट इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी पर्टिकुलर। एक्चुअली वॉइस लैग हो रहा है तो मैं सुन नहीं पा रहा। ओके, चले आगे नेक्स्ट पे। सो क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है, एंड लाइक जस्ट रिमेंबर डिस्क्वालिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन, ठीक है, दोनों में ही मतलब ना आउस्ट किया जाता है, बट द थिंग इज डिस्क्वालिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन। सो उससे आगे चलने से पहले कोई बता सकता है डिस्क्वालिफिकेशन और एंटी डिफेक्शन में जस्ट एक बेसिक डिफरेंस क्या है? हो और इसके लिए तुम्हें निकाल दिया जाए, और डिस्क्वालिफिकेशन इज फॉर डिफरेंट रीजन, लाइक अगर तुम किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हो, अनसाउंड माइंड हो, इंसॉल्वेंट हो, या सिटीजन नहीं हो, ये हाँ जैसे मैम बता रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक हो रहा है, और जो डिफेक्शन है इसमें नॉन परफॉर्मेंस वाला मैटर आ रहा है। या एंड अलॉन्ग विद दैट जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, और उसके अंदर ईसी का वो होता है, मतलब ना लाइक ईसी का कंसल्टेशन रहता है, ओपिनियन होता है, बट ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन वो होते हैं जो उसके प्रिसाइडिंग ऑफिस होते हैं। अगर लोकसभा है तो स्पीकर, एंड इन केस ऑफ द राज्यसभा तो चेयरमैन, ठीक है। तो ओके, एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन किन किन वेज पे हो सकता है, मतलब कौन कौन सी कंडीशन पे द पर्सन वुड बी डिस्क्वालिफाइड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन एज पर द आईपी, कोई बता सकते हैं? yes. 5 पॉइंट्स हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर वो सिटीजन नहीं है, और डिस्क्वालिफिकेशन बाय पार्लियामेंट और एनी लॉ। परफेक्ट, एंड व्हाट अबाउट आईपी एक्ट, अगर उसमें से 2-3 कुछ भी याद हो तो? एक तो वो गिल्टी नहीं होना चाहिए किसी भी केस पे, उसका कन्विक्शन नहीं हुआ होना चाहिए 2 साल से ज्यादा का, अकाउंट उसके जो भी इलेक्शंस ना, जैसे इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के जो एक्सपेंसेस है उसके रिलेटेड में कोई भी उस पर केस नहीं होना चाहिए, सो ठीक है। उसके बाद में ये हमें एंटी डिफेक्शन है जो वो शेड्यूल 10 में है, ठीक है, 10 में है वो, और बाकी वो 52nd अमेंडमेंट 1985 में ऐड हुआ था। उसके बाद में क्या वांटेड टू नो, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या आते हैं? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कि फॉर एग्जांपल अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे है, ठीक है, तो वो किसी और की सीट पे बैठे, वो हो जाते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आप एक सीट में हैं एंड यू आर जस्ट स्टिल लाइक कवरिंग द अनदर सीट एज वेल, तो आपको उधर से भी तो आएगी ना इनकम, दैट विल बी कवर्ड बाय ऑफिस ऑफ। ओके, थैंक यू मैम। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की एक लिस्ट होती है इन द रूल्स ऑफ, मतलब बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट अपनी खुद की एक लिस्ट बना के रखते हैं वो लोग, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। एक एक्ट है इसका, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट है, उस रूल उसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया भी मेंशन है कि कौन कौन से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफिसेज हैं जो प्रॉफिट के पार्ट है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि मेंबर्स डिस्क्वालीफाई क्यों होते हैं, बिकॉज then they would not be able to perform their function as like making the executive responsible to the house.
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के अंदर काम करना, दैट इज एग्जीक्यूटिव के अंदर काम करना, और then they would not be able to make the executive responsible in the house that the legislature has one of the function. मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल भी है ना इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का? हाँ 102/91। हाँ जी सर। ओके तो जो मेंबर होता है पार्लियामेंट का वो अपनी सीट को कब कब वेकेट कर सकता है? कि फॉर एग्जांपल जैसे एक मेंबर है, ठीक है, दोनों हाउसेस का है, तो उसकी फर्स्ट हाउस में सीट खाली हो जाएगी, फिर जैसे वो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का दोनों का है, तो फिर उसकी सीट पार्लियामेंट में, तो वो वाले जो पॉइंट्स है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दोस पॉइंट्स। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन वी हैव डिस्कस्ड, एंड रेजिग्नेशन वाला पार्ट में तो सपोज जैसे प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट। VP। ओके, सो जो प्रेसिडेंट होता है वो वाइस को देता है, जो वाइस होता है वो प्रेसिडेंट को देता है, सेम वाइस जो स्पीकर होता है वो चेयरमैन को देता है, चेयरमैन स्पीकर को देता है, एंड सो सॉरी स्पीकर डेप्यूटी को देता है, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देता है, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर या ओके, एंड देन एब्सेंस एंड अदर केसेस, ठीक है। उसके बाद में ओथ वाला हमने डिस्कस कर लिया है, पहले वो इलेक्शन कमीशन से ओथ दिलवाते हैं मेंबर बनने के बाद, ठीक है, फिर इनकी जो सैलरीज होती है वो सैलरीज इनकी जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ओके, एंड पेंशन का इसमें कोई प्रोविजन नहीं था पहले, बट फिर उन्होंने बाद में अलाउ करवा दिया था पेंशन वाला प्रोविजन। ओके, तो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा का, वो कैसे इलेक्शन होते हैं लोकसभा के स्पीकर के? लोकसभा इफेक्टिव मेजोरिटी से मेंबर्स ऑफ लोकसभा करते हैं। आई गेस उसके रिमूवल में मेजोरिटी यूज होती है, उसके अपॉइंटमेंट में नहीं यूज होती है मेजोरिटी, क्योंकि वो उसी में से करते हैं ना, उसी के मेंबर्स में से। ओके, तो जो स्पीकर होते हैं वो उन्हीं मेंबर्स में से इलेक्ट होता है, और जब उसकी सीट फॉल हो जाती है तो उस केस में जो लोकसभा है वो किसी और को ना लाइक उस वैकेंसी को फिल करवाने के लिए बुलाती है। एंड देयर वाज अ क्वेश्चन कि जो स्पीकर की डेट होती है वो कौन फिक्स करता है इलेक्शन की? द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द इज फिक्स बाय प्रेसिडेंट। ओके, तो यस, सीट इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, जो उनका डेट कहते हैं, ठीक है, दैट इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, And ओथ कौन होता है स्पीकर को? ओथ नहीं होता है स्पीकर का। ओके। स्पीकर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जैसे ही ओथ लेता है ना। हाँ हाँ सही बताया। ओके, फिर उसके बाद में जो लोकसभा रहते हैं, ठीक है, अगर वो डिसॉल्व कर दिया गया है तो जो स्पीकर है उसको वैकेंट नहीं करता है, तो वो तब तक रहता है जब तक कि नई लोकसभा नहीं बन जाती है, ठीक है। तो सपोज इफ आई से वन क्वेश्चन कि जो स्पीकर है वैकेट्स हिज ऑफिस एंड सीट इमीडिएटली, सो इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, अगले स्पीकर तक नहीं होता। या ओके, तो जब तक कि नए नहीं आ जाते ही विल बी लाइक स्टेइंग देयर। ओके, सो हाँ आप प्लीज कंटिन्यू प्लीज। हाँ मैं पूछ रहा था कि बताना ट्रू और फॉल्स। तो आ मेंबर ऑफ राज्यसभा रिजाइन्स टू द प्रेसिडेंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हाँ फॉल्स है, वो चेयरमैन को देते हैं अपना रेजिग्नेशन। ऑन द सेम लाइंस मेंबर ऑफ लोकसभा रिजाइन्स टू द स्पीकर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हाँ एकदम सही है, ट्रू, दिस इज ट्रू। ओके, और एक है प्रोटेम स्पीकर होता है कुछ, व्हाट इज प्रोटेम स्पीकर? जो स्पीकर होता He है is
बताए Pro tem speaker is generally a senior most member of the house, जिसको president appoint करता है for delivering oath to the newly elected members of the Lok Sabha, or then he sits and chairs the election of the speaker too, and then he hands over the chair to the speaker, newly elected speaker. ऑल राइट, बिल्कुल सही। अब इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप ये कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इनको ओथ कौन दिलवाता है, प्रोटेम स्पीकर या फिर स्पीकर? प्रेसिडेंट। प्रोटेम स्पीकर का काम यही होता है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट नहीं दिलवाता, ये कंफ्यूज मत होना। एक बताना कि प्रेसिडेंट्स चेयर द कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट, ट्रू और फॉल्स? स्पीकर चेयर्स them. हाँ, तो प्रेसिडेंट कोई भी कमेटी चेयर नहीं करता है, ये याद रखना। स्पीकर भी है, वो कुछ एक कमिटीज को बाय डिफॉल्ट पोस्ट के हिसाब से चेयर करता है, और कुछ एक का चेयरमैन वो खुद बनाता है लोगों को। कुछ एक कमिटीज को डिसाइड करती है चेयर। अच्छा, अपने प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट क्यों बोलते हैं हम लोग, क्या वजह है? मे बी मुझे लगता है ड्यू टू ही गिव्स द असेंट टू द बिल्स, देयरबाय ही इज द पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसीजर, वो पार्लियामेंट। ये वो समन करता है पार्लियामेंट को, और वो डिसॉल्व करता है लोकसभा को, और वो बिल को असेंट करता है। इसलिए 4 मेन रीजंस हैं। यस मैम, यस, दीस आर द 4 रीजंस। Yes, true. यस, नाइस। एक बताना कि प्रेसिडेंट कॉल्स द जॉइंट सिटिंग। Yes, President called the joint sitting and chaired by chairman of Lok Sabha. हाँ, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, करेक्ट। अगर वो एब्सेंट हो तो कौन चेयर करेगा लोकसभा स्पीकर? Most member and decided by president. No, Senior deputy chairman of the Rajya Sabha, if speaker is absent in joint sitting. एक लिस्ट होती है ना, चेयरिंग वाली लिस्ट, उसमें जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उनको भी अगर डेप्यूटी एब्सेंट है तो फिर उनको लगा देते हैं। सर वो अलग केस होता है, जॉइंट सीटिंग में ऐसा नहीं होता। वो अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हाउस में एब्सेंट है ना, उस केस में होता है। लेकिन जॉइंट का अलग केस होता है, उसमें चेयरमैन सर करेंगे, स्पीकर करेंगे, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी करेंगे, डिप्टी नहीं है तो फिर राज्यसभा का वाइस करेगा, वो नहीं है तो फिर लोग डिसाइड करेंगे, कुछ ऐसा होता है। हाँ, तो वो ये इन दोनों तीनों के एब्सेंट होने के बाद है ना, जो लिस्ट जो बना के रखते हैं, उस लिस्ट में से सीनियर मोस्ट मेंबर्स को वहां पे लगा देते हैं कि आप चेयर कर लो। ये बता रहा था मैं। ठीक है। मनी बिल, फाइनेंस बिल टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है? मनी बिल आर्टिकल 110 और मनी फाइनेंस बिल के जो दो पार्ट है वो 117 पे 117 में। दूसरा, इनके पास करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है, दैट इज मनी बिल। फिर ऑप्शंस अवेलेबल टू प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट हैज टू गिव असेंट ऑन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल ए, आई थिंक, और नॉट ऑन फाइनेंस बिल बी। एंड yes, there are some conditions with respect to money bill, वो article 110 में दे रखी है, be it charge expenditure or annulments of taxes and etc. Whereas there are not much conditions given with respect to finance bill 117 में। और decision of the speaker is final कि something is money bill or not। and again 110 के बाद 111 में, 110 में ही या 11 में they have said कि speaker has to give up NOC or something, some certificate कि this particular bill is a money bill। हाँ, 110 में ही यही वाली बात।
हम्म, तो ऑर्डिनरी बिल और एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में क्या अंतर है? Ordinary bill, any member of the house can introduce. Constitution amendment bill is introduced only by the government of India. Constitution amendment bill को पास करने के लिए we need a special majority. Ordinary bills are passed through simple majority. नहीं, सीए भी तो कोई भी ला सकता है ना, ऐसा ये Constitutional भी bill, constitutional bill can be passed by any, be it public or private. ठीक है, हाउसेस का भी इंट्रोड्यूस बीट लोकसभा और राज्यसभा। एक फर्क क्या रहता है इसमें, जो प्रेसिडेंट होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पे असेंट देना ही होगा, मतलब उसे पेश या उसको पास करना ही होगा। ऑर्डिनरी बिल पे वो उसको वापस भेज सकता है, उसको रिकंसिडर करवा सकता है, उसको विद होल्ड कर सकता है, मतलब जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, पहले ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में भी होता था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था पहले भी। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने उसको फाइनली प्रेसिडेंट पे ये कर दिया कि अब आपको असेंट देना ही होगा, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, और जो सीए वाला होता है उसका स्पेशल प्रोविजन 368 में मेंशन है स्पेशली, और बाकियों का उसमें जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर ना 108 या 107 में वहां मेंशन है, ये डिफरेंस है। So constitution amendment bill can be brought by any member of the house. हाँ हाँ सर, सर, कोई भी हाँ ला कोई भी ला सकता है, और मतलब कोई से जरूरी भी नहीं हाउस है गवर्नमेंट बिल हो। हाँ जरूरी नहीं है। वो वैसे उसको 2/3 मेजोरिटी ही लगती है, इसलिए गवर्नमेंट ही लाती है, क्योंकि मेंबर्स नो दे डोंट हैव इवन दी फुल मेजोरिटी अभी, तो 2/3 तो बहुत दूर की बात होगी। अच्छा, हाँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल? by any single member. बिल है वो प्राइवेट मेंबर बिल। हाँ सॉरी नॉन मैम, मैं सुन नहीं। मिनिस्टर बिल होता है ये, मतलब रूलिंग पार्टी का बंदा ही बुला सकता है और अपोजिशन का नॉन मिनिस्टर बिल बोलते हैं ना इसको। एग्जैक्टली। तो नॉन नॉन गवर्नमेंटल बिल जो है सारे प्राइवेट मेंबर बिल है। इज देयर एनी प्राइवेट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? मैनी टाइम्स। यस यस यस, याद रखना है। कब हुआ था लास्ट वाला? 70s में हुआ था ना? ये तो आई डोंट रिमेम्बर, मैम बता सकते हैं। 70s का मतलब 1970 यू वांट टू से? यस मैम, यस मैम। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा हो गया ये तो। अभी रिसेंटली थोड़े साल पहले ही हुआ था, जिस साल ये क्वेश्चन आया था ना, ये जो अभी देव आपने क्वेश्चन पूछा है, 2017 के सेकंड स्टेटमेंट में आया था ये क्वेश्चन। तो उसी साल, इतना नहीं लेट हुआ, 2010-11 आसपास यहीं पे है, इतना नहीं। 70 बहुत। कैसे याद होते हैं ये एक सेकंड ट्रांसजेंडर वाला बिल था, वो प्राइवेट मेंबर बिल, वो पास हुआ था। कब आया था स्पर्श वो? डेट नहीं पता मैम, लेकिन वो इसी 2010-11 के बाद ही आया है। वही एग्जैक्टली, हाँ आसपास ही आया, मतलब 5-6 साल प्लस ऊपर माइनस प्लस कर दो, लेकिन मतलब जो आप बोलो 1970 वो कुछ ज्यादा हो गया, इतना नहीं पहले आया। इसमें आ चुका है, जिसमें अपने एग्जिस्ट कर रहे सेंचुरी में, इसमें आ चुका है। इधर दिखा रहा है कि डॉक्टर शशि थरूर ने 2016 में इंट्रोड्यूस किया था, बट वो पास नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है इसको यूपीएससी ने पूछा हुआ 17 में, ऐसा दिखा रहा है। अभी हाँ किसी वही ने बोला ना amendment मैंने, introduce क्योंकि किया। रिसेंट बन था तो भी पास नहीं हो पाया। Hello. There is one statement: the date of the election of the speaker is fixed by the president, but the date of the deputy speaker is fixed by the speaker. True, false? True, yes. Correct. हेलो। हाँ सर, पूछो। अब क्लैरिफिकेशन है कि 2016 में जो प्राइवेट मेंबर बिल था जो आप बता रहे हैं, शशि थरूर लेके आए थे, वो ट्रांसजेंडर वाला, वो पास नहीं हुआ था। देन इट वाज रीइंट्रोड्यूस्ड एज अ गवर्नमेंट बिल और फिर वो पास हुआ था।
तो लास्ट प्राइवेट मेमो बिल जो एक्चुअली पास हुआ है पार्लियामेंट से वो 1970 में ही हुआ है, ये बात सही। प्रीवियस टू दैट 1956 में कई सारे बिल पास हुए थे, बट नॉट रिसेंटली, मतलब पिछले 20-25 सालों में तो नहीं हुआ है पास कोई प्राइवेट मेमो बिल। हाँ वो मैंने भी नहीं सुना था, मुझे भी 70 सही लग रहा था। यही दिया एनसीईआरटी में कि लिबरल रहते थे उस टाइम में लोग, आजकल नहीं होता है, ऐसा कुछ है क्रिटिसिज्म इसका। ओके, बट 1970 थोड़ा कुछ ज्यादा लगा, ठीक है। ओके, एक एक क्वेश्चन है कि इफ प्रेसिडेंट वांट्स ही कैन हैव अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट एट एनी प्लेस वेयर ही डेजिग्नेट्स, ट्रू और फॉल्स? हाँ ट्रू, ट्रू। ये तो मेंशन है ना 86-7 आर्टिकल में, डायरेक्टली मेंशन है। हाँ करेक्ट। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का है, खैर आज पार्लियामेंट का है, पर सुप्रीम कोर्ट के पास भी यही पावर है, ट्रू और बट वो फॉल्स? प्रेसिडेंट की असेंट लेनी पड़ेगी ना, कुछ ऐसा सीन है उसका। हाँ हाँ सही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, और फिर जैसे रूल्स वगैरह है उसके हिसाब से सीजीआई कैन डेजिग्नेट बट प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। बाकी आप लोगों को और क्वेश्चंस हो तो प्लीज एनीवन कैन आस्क। इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में क्या डिफरेंस है? इंटरिम बजट जब इलेक्शन ईयर होता है मेजरली तब आते हैं, तो वो दैट इज ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ सम से कि मई में चुनाव है तो बजट वुड बी इन जनवरी और फरवरी, तो वो कुछ उसके लिए होता है। और वोट ऑन अकाउंट वो इसलिए था कि बजट और फाइनेंशियल ईयर में मिसमैच होने के लिए प्रीवियस अप्रूवल ले लेते हैं कि हम वोट ऑफ अकाउंट दे दीजिए, हमें परमिशन दे दीजिए, वी कैन हैव आवर ओन एक्सपेंडिचर, दैट इज वोट ऑन अकाउंट। हाँ ये अब एप्लीकेबल नहीं है वोट अकाउंट वाला सीन। इसका ये होता था यार कि बजट पास होते होते बहुत टाइम लग जाता था, तो गवर्नमेंट बोलती थी हमें टाइम 2-3 महीने खर्चा दे दो ताकि बजट पास हो जाए, बाद में देख लेंगे इसको। और ये न्यूज में दिखा रहा है कि इंटीरियम बजट जो इलेक्शन हुए थे ना 19 में, इन्होंने पूरा बजट पेश किया था, इंटीरियम कुछ नहीं बोला था, तो दे वायलेटेड द हाँ थिंग्स, ऐसा दिखा ये रहा है। कॉन्फिडेंट है, ये कॉन्फिडेंट है कि हम 19 में जीते रहे। हाँ बट दे वायलेटेड द कन्वेंशन, ऐसा आ रहा है न्यूज में। वैसे हाँ हाँ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं वही है है, सर वो इसका। फुल फ्लेजेड बजट हाँ नहीं है सर, नहीं है, नहीं। वो फुल फ्लेजेड बजट इसीलिए नहीं लाते थे मोरल अथॉरिटी पे कि विल नॉट हैव पावर आफ्टर में, तो व्हाई शुड वी ब्रिंग ऐसा। हाँ, हम अपना इम्पोज क्यों करें, नहीं गवर्नमेंट को अपने हिसाब से पॉलिसी बनाना चाहिए, बट दे वायलेटेड और पूरा बजट ही आया था ऐसे। हम्म। फाइनेंशियल बिल और अप्रोप्रिएशन बिल में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस। फाइनेंशियल टैक्सेशन से लिंक होता है ना, टैक्सेशन होता है कि आप कितना मनी वनी विड्रॉ कर रहे हो, उसके लिए होता है ना वो तो। एक तो है कि एवरी अप्रोप्रिएशन बिल इज अ फाइनेंस बिल, बट नॉट एवरी फाइनेंस बिल वुड बी अ अप्रोप्रिएशन बिल। क्यों? क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल इज विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड्स ऑफ ग्रांट जो बजट के लिए ला रहे हैं, तो बेसिक अंतर ये है। हाँ सर, और एक ये कि ये जो फाइनेंस बिल है ना वो बेसिकली रिसीप्ट्स शो करता है, और अप्रोप्रिएशन बिल में एक्सपेंडिचर और वो सब है। अगर एनुअल इज अ मनी बिल a finance bill also? Yes, all Yes, money sir. bills are हाँ, तो ये भी याद रखना कि मनी बिल भी एक टाइप का फाइनेंस बिल ही है विथ सर्टेन मोर गुड क्वालिटीज, इसलिए वो सेपरेट मनी बिल हो गया। हाँ सर पूछिए, क्या पूछे थे? मैं बोल रहा था कि अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास ना हो पार्लियामेंट में तो क्या होगा? देन द resign. गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन।
रिजाइन देंगे, मतलब पीएम लेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम्म, एक ऑप्शन दिया यूपीएससी ने, फनी ऑप्शन है कि बजट को मॉडिफाई करेंगे और दोबारा पेश करेंगे। 2010 का एक सवाल और है है। वोट ऑफ थैंक्स ऑफ प्रेसिडेंट अगर पास नहीं होगा तो क्या रिजल्ट होगा उसका? गवर्नमेंट रिजाइन्स। हाँ नहीं, कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है ना, नो कॉन्फिडेंस वगैरह। सेम यही हो जाएगा ना कि हाँ, गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी ही नहीं है, तभी तो पास नहीं हो रहा है। मेजोरिटी नहीं है, वो उनको दे हैव टू रिजाइन कि उन्होंने सिर्फ सड़े से सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं करवा पाए, दे हैव टू रिजाइन। अच्छा, व्हाट इज फ्लोर टेस्ट? वही सर, आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करोगे कि यू हैव कॉन्फिडेंस इन द हाउस, ऐसा कुछ। हाँ, उसमें सर हाँ 20 हाँ, दिन दिए जाते क्या? कितने दिन मिलते हैं? वो जब प्राइम मिनिस्टर पहली बार, सॉरी, जब प्रेसिडेंट किसी बंदे को प्राइम मिनिस्टर की ओथ दिलाते हैं, तो देन इन द फर्स्ट 14 days, 14 he has to show, he has to take the floor test। तो वो पहले 14 दिन में you have to prove his majority। वो पूछ रहे होंगे आप शायद। अच्छा, जो अपने एजी होते हैं वो किसी कमेटी के मेंबर बन सकते हैं, अटॉर्नी नहीं। जनरल? नहीं, he can't be member। नो, ही इज नॉट मेंबर। मतलब वो प्रेजेंट हो सकते हैं हियरिंग में या बैठ के सुन सकते हैं प्रोसीडिंग्स वगैरह, बट ही इज नॉट मेंबर ऑफ द हाँ कमिटीज। हाँ, क्योंकि he is part of the executive, not the part of legislature। यस। ओके, बट वो प्रेजेंट हो सकते हैं, तो प्रिविलेज तो उनको वही मिलेंगे ना जो बाकी एमपी वगैरह को मिलते हैं। हाँ, प्रेजेंट हो सकते हैं, तब मिलेंगे उनको। अच्छा, अभी ये न्यूज़ में था जो कि राज्यसभा के एमपीज को सस्पेंड कर दिया, तो ये कहाँ मेंशन है सस्पेंशन का? जैसे डिस्क्वालिफिकेशन तो है, सस्पेंशन कहाँ है? रूल्स ऑफ द हाउस में है। इसका फेमस नंबर भी है शायद, 239 या 259 नंबर है शायद फेमस। हाँ जी सर, रूल्स में मेंशन है। Somewhere in a test series I've been to this question। तो 239 या 259 नंबर है। यार, ये जो एजी वाला मैंने पूछा था ना क्वेश्चन, आर्टिकल हम्म, 88 में दे मेंशन कि वो मेंबर बन सकते हैं बट कैन नॉट वोट। दिस थिंग इज देयर, यू कैन रेफर टू आर्टिकल 88 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें दिया हुआ है ये राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड एजी एज रिस्पेक्ट टू द हम्म। हाउस, तो साफ साफ लिखा हुआ है जॉइंट सेटिंग वगैरह में जा सकते हैं, एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हैं अगर उनको बोला जाए, बट दे कैन नॉट वोट, एजी स्पेशली। So Article 88 mentions every minister and Attorney General of India shall have right to speak in and otherwise take part in the proceedings of either house, any joint sitting of the house, and any committee of the parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote. So yes, he can be a member if he is appointed, but he cannot vote in it. Attorney General.
वेरी गुड पॉइंट सर, अच्छा था ये पॉइंट। Both Speaker and Chairman are the members of the House. True, false? Yes, speaker is the member of the False. house, but not the chairman साहब। चेयरमैन को ये रिजाइन क्यों करना पड़ता है, मतलब इसकी लॉजिक है, रिजाइन क्यों करना पड़ता है हाउस से? साइन करते हैं, 1 मिनट। ये कोई प्रोविजन है, आई डोंट रिमेम्बर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या रूल्स ऑफ लॉ है, वो जो रूल दे रखे हैं इलेक्शन ऑफ वीपी वाला एक्ट। आप इसको कंफर्म कर दो सर। मुझे पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वैसे। ये उसमें देखना पड़ेगा ना कि वाइस चेयरपर्सन का जो होता है उसमें इलेक्शन में दिखता है। हाँ, तो ये रूल वैसे चेयरमैन के लिए है इधर राज्यसभा में, पर उधर स्पीकर के लिए इट इज ऑब्जर्व या फिर इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्पीकर कि ही वुड रिजाइन फ्रॉम द पार्टी, बट दिट इज नॉट हैपनिंग। वैकेट करने की बात कर रहे हैं सीट। हाँ हाँ, वही सीट तो वो वैकेंट कर देगा तो मेंबर नहीं रहेगा, फिर वो स्पीकर भी नहीं बन पाएगा। वो पार्टी का बोल रहा था मैं कि इट इज सीट एक्सपेक्टेड वैकेट फ्रॉम करता है 3 रीजन। सॉरी, इसमें जब वो राज्यसभा का मेंबर बनना बंद हो जाता है, वो सीट छोड़ देता है। दूसरा जब वो चेयरमैन बन जाता है, और तीसरा जब उसको हटा दिया जाता है। बट वो रिजाइन क्यों करता है, मुझे क्वेश्चन पता नहीं, आपको कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा बहुत। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अपने स्पीकर होते हैं वो एज ए एमपी रिजाइन नहीं करते लोकसभा में, बट जो अपने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एज ए एमपी राज्यसभा में रिजाइन कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, मतलब लॉजिक क्या है ऐसा, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये तो रूल है सर, ये चेक करना पड़ेगा अपने। तो का मेंबर तो फर्स्ट है है बट वो कि प्रिसाइड नहीं करता है। क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है उसमें उसको मेंबर होना जरूरी नहीं है। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर हो जरूरी नहीं है। And तो this president is not a member of any house. and yes, he is not a member of any house। तो मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है क्वेश्चन। केस की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि अगर वो वीपी है तब तो वो रिजाइन नहीं करता है। Ma'am, please repeat your question once again. रिजाइन कब क्यों करता है, बट वो रिजाइन कब करता है? अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है, डेप्यूटी चेयरमैन, तब वो रिजाइन तो करता है, क्योंकि वो तो उसकी पोस्ट ही है कि डेप्यूटी चेयरमैन ही वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो रिजाइन किस मुद्दे की बात कर रहे हैं, मतलब किस वे में बात कर रहे हैं आप? नो, his question was कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाता है then he will have to resign from his membership of राज्यसभा, ये क्वेश्चन था उनका। लेकिन क्वालिफिकेशंस में इट्स नॉट मेंशन कि he should be a member of राज्यसभा और लोकसभा। मतलब वो he should be qualified to be member of राज्यसभा। He can be any person who is 35 years, citizen of India, qualified to be member of राज्यसभा।
एंड डज नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। अब वो मेंबर हो चाहे ना हो, इट डज नॉट मैटर, बट ही शुड बी क्वालिफाइड। His question is different because मैम बोल रही कि अगर राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे देता है तो उसका जो वन सेकंड I'll understand. I'll say what ma'am is saying. Ma'am is saying कि वो राज्यसभा में मेंबरशिप का क्विट कर देता है जब he has to elect या he has to fight for election of RS chairman या फिर VP. But when he is VP itself and he is going for a second term, then वहाँ पे he don't need to resign. तो ये तो सही बता रही हूँ कि yes, he don't need to resign there. We have seen Hamid Ansari's case. कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ओके, नवीन का सवाल था ये, शी वाज आंसरिंग, आई थिंक, मतलब ओवरऑल कंफ्यूजन अगर है तो मंजूषा वाज आंसरिंग नवीन क्वेश्चन एंड फिर उसके बाद पूरा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, नवीन एक बार फिर से बता दे कि वो क्लियर हो गया मतलब, या अभी भी कुछ है? सर मैं बताता हूँ, मैंने ये पूछा था कि जो अपने अभी के जो वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने रिजाइन किया था ना इलेक्शन को फाइट करने के लिए राज्यसभा एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जो अपने स्पीकर होते हैं वो रिजाइन नहीं करते एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। मेरा ये क्वेश्चन ये था, तो मैं पूछ रहा था तो ऐसा क्यों होता है? तो जो सर ने बताया ना पॉइंट कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर, तो क्वालिफाई होना जरूरी है। वो रिजाइन कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी करते, मुझे तो ये समझ आया है, बट लोग करते एक्चुअली हैं ना जनरली। स्पीकर का इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस होता है, ठीक है, लेकिन जो चेयरमैन होता है ना अपना, उसका इलेक्शन एज अ चेयरमैन नहीं होता है, उसको इलेक्ट करते हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए चेयरमैन है, ना कि चेयरमैन है इसलिए वाइस प्रेसिडेंट है। तो अब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो दोनों हाउस पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि उसमें ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। और अगर मेंबर है तो अगर वो इलेक्ट हो गया वाइस प्रेसिडेंट तो उसकी मेंबरशिप चले जाती है। तो वो एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो उसके बेसिस पे वो चेयरमैन होता है, ना कि उसका अलग से इलेक्शन होता है एज अ चेयरमैन। यस, ट्रू। ट्रू। दिस इज द बेस्ट लॉजिक अभी तक तो समझ आया। हाँ, और प्रेसिडेंट सर के इलेक्शन में भी होता है ना कि शुड बी क्वालिफाइड टू बी, ऐसा रहता है ना उनके भी एक क्वालिफिकेशन। जो वाइस वो भी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा होता है उनका। ये दोनों में रहता है। हाँ, इनका राज्यसभा के लिए होगा, उनका लोकसभा के लिए होगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, नो जनरल बजट से रेलवे बजट को अलग कब किया गया था? सर ये तो ब्रिटिश टाइम में था, 1920s में हुआ था। 24. यस, 1921 में फर्स्ट टाइम एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको अलग किया गया था। एंड देन अगेन मर्ज कब किया गया है? विवेक देवराय कमेटी 2016, 17 समथिंग। 2016. 2017 के बजट से इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ओके, और किसी क्वेश्चंस हो तो प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, एक सवाल है मेरा। अपना पार्लियामेंट सोवरन है या नहीं? नहीं है तो क्यों? और इन अपने पार्लियामेंट का स्टेटस क्या है, सोवरन है या वो सुप्रीम है, मतलब क्या है? मेरा ये क्वेश्चन है। इंडिया में वी द पीपल सोवरेन है, पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है शायद, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। Yes, हाँ it सर, is इंडिया में not पार्लियामेंट supreme. सुप्रीम जरूर है।
सुप्रीम तो सर कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में. सोवरेनिटी इज पीपल्स सोवरेनिटी एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड नंबर पे नीचे आएगी पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन लॉ मेकिंग. हाँ, सोवरेन तो लोग है, नो डाउट अबाउट इट. सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन भी है और पार्लियामेंट भी है. सुप्रीम का मुझे जो समझ आया मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने गूगल किया है वहां से. लक्ष्मीकांत में तो बता के निकल गया है. सुप्रीम का मतलब होता है वो अपने स्पेयर में कुछ भी कर सकते हैं. जैसे सर ने बोला लॉ मेकिंग में, दे कैन डू एनीथिंग, बट उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. तो सॉवरेंटी तो वहां खत्म होगी. तो आप अपने एम्बिट में सुप्रीम हो. जुडिशरी अब में अपने एम्बिट में सुप्रीम है. तो अपना पार्लियामेंट है वो सुप्रीम पार्लियामेंट है, ना कि सोवरेन पार्लियामेंट है. सोवरेंटी कम करने के लिए फंडामेंटल राइट है अपने पास, ठीक है. जुडिशियल रिव्यू है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो अच्छी अच्छी बातें है वो सब है. तो ये कैन मुझे ये समझ आया. बाकी कोई ऐड करना चाहिए इसमें? पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिकॉज तो पार्लियामेंट सुप्रीम ही है. जी सर, बट वही है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह वही है, तो सुप्रीम ही होगा, सोवरेन तो नहीं होगा. Sorry to interrupt, but I did not understand. Is that final that Parliament is supreme and sovereign, or what is the end of this discussion? सर कंक्लूजन ये है कि अपना पार्लियामेंट सोवरेन तो नहीं है. सोवरेन का मतलब होता है कि अनडिस्प्यूटेबल पावर, कि आपके ऊपर कुछ नहीं. जैसे यूके का पार्लियामेंट है ना, वो सोवरेन है. एक लाइन जो बोलते हैं कि मैन वुमेन चेंज करने के अलावा वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. तो अपना पार्लियामेंट सोवरेन तो नहीं है. सोवरेनिटी पे रिस्ट्रिक्शन क्या लगाती, तो वी द पीपल सोवरेन, इलेक्शन होते रहते हैं. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना. फिर अपने पास फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. एक होता है फिर सुप्रीम. अगर आप गूगल करो ना तो सिनोनिम ही दिखाएगा इसका, लेकिन लीगल टर्म में डिफरेंस होता है. सुप्रीम का मतलब होता है वो अपने एम्बिट में सुप्रीम हो. जैसे पार्लियामेंट का क्या काम होता है, लॉ मेकिंग, तो वो वहां पे सुप्रीम है, वो अच्छा खासा लॉ बना सकती है, ठीक है. जुडिशरी का क्या मतलब होता है, चेक एंड बैलेंस वगैरह करना, लॉ को चेक करना, जुडिशियल रिव्यू करना, वो वहां पे सुप्रीम है. तो अपना पार्लियामेंट है वो सुप्रीम पार्लियामेंट है, ना कि सोवरेन पार्लियामेंट है. अच्छा, ये जो जॉइंट सिटिंग है हमारी, इसमें ना 2 एक्सेप्शंस दी हुई हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स हैं वो भी जॉइंट सिटिंग में जा सकते हैं. तो उसकी 2 ये हैं एक्सेप्शंस, तो वो बताएगा कोई क्या है? सर 6 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए, कुछ ऐसा होता है ना, तभी जाएगा. एक तो ये है. मैं पढ़ देता हूँ तो उसका मतलब बता देना. Those amendments that have caused final disagreement between the houses. और second है those amendments that might have become necessary due to the delay in the passage of the bill. अब पहला तो वो डिसएग्रीमेंट बोल रहा है ना, कि जिस पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है. जैसे कि जीएसटी ले लो, जीएसटी में डिसएग्रीमेंट हो रहा था कि जो टैक्स है इतना होना चाहिए, तो वो पॉइंट हो गया. दूसरा बोल रहा है कि जिस पॉइंट की वजह से डिले हो रहा है. अब डिले, वो दोनों सिनोनिम ही लग रहा है मेरे को तो यार. पता है क्या किसी को? एक्चुअली ना ये बात की गई है कि जैसे जॉइंट सिटिंग हुई, ठीक है, तो उसमें कौन सी अमेंडमेंट अलाउ कर सकते हैं, ठीक है.
ये नहीं कि हम्म, ज्वाइंट सीटिंग हो रही है किसी बिल के ऊपर तो कोई भी अमेंडमेंट नया अमेंडमेंट लाके उधर पर पेश कर देंगे कि ये अमेंडमेंट होना चाहिए। तो ऐसे कोई भी अमेंडमेंट पेश नहीं किया जा सकता। केवल दो टाइप का अमेंडमेंट परमिसेबल है ज्वाइंट सीटिंग में। एक अमेंडमेंट वो कि जैसे कोई बिल है, उसमें बोला गया था कि टैक्स लगाएंगे 1 मार्च से, ठीक है, लेकिन अब वो ज्वाइंट सीटिंग हो रही है अप्रैल में, तो वो डेट चेंज करनी पड़ेगी उन्हें अप्रैल के हिसाब से। तो ऐसा अमेंडमेंट जो कि बिल डिले हो गया है उसके कारण लाना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा कौन सा अमेंडमेंट, जिस जिस बात पे कि दोनों हाउस पे डिसएग्रीमेंट हुआ था, दोनों हाउस पे डिसएग्रीमेंट हुआ इसलिए वो बिल पास नहीं हो पाया, तो जिस बात पे वो डिसएग्रीमेंट हुआ था उससे रिलेटेड अमेंडमेंट अलाउ करेंगे बस। तो ये दो टाइप के अमेंडमेंट अलाउ होते हैं, उसकी बात हो रही है दोपहर। पहला क्या बोला था सर आपने? पहला ना, जैसे कोई भी बिल डिले हो गया ना, ज्वाइंट सीटिंग पे बुलाया, लेकिन एक्चुअली जब वो बिल लाया गया था, बिल जनवरी में लाया गया मान लो, ठीक है, कि मार्च से ये टैक्स लगाएंगे हम, ठीक है, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया, डिले हो गया ना, तो फिर वो ज्वाइंट सीटिंग हो रही है मान लो अप्रैल या मई में, ठीक है, तो उस बिल में लिखा हुआ था कि मार्च से टैक्स लाएंगे, तो वो डेट चेंज करनी पड़ेगी अब, क्योंकि वो बिल पास होते होते तो बहुत लेट हो गया है, उस बिल की टैक्स की डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी कि हाँ अगस्त से लाएंगे करके। तो वो अमेंडमेंट जो कि डिले के कारण ये डिले हो गया ना, इस कारण ये अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है, मार्च की जगह जून या जुलाई करना पड़ रहा है, तो वो अमेंडमेंट परमिसेबल होंगे। ओके सर। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है, वो उसका भी बताना। इसी में लिखी हुई है, मतलब पीछे थोड़ा, कि इन रेकनिंग द पीरियड ऑफ 6 months नो अकाउंट कैन बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द अदर हाउस to which the bill has been sent is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days। ये जॉइंट सीटिंग वाले में लिखा हुआ है, इसका कोई बताएगा मतलब? हाँ, मतलब जॉइंट सीटिंग तब आएगी जब 6 महीने का टाइम बीत गया हो। उस 6 महीने में जिस दिन 4 दिन से ज्यादा हाउस काम नहीं कर रहा था उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। मेन पॉइंट वही है। जैसे कि मान लो कि अब सेशन चल रहा है, सेशन खत्म हो गया, ठीक है, तो वो टाइम नहीं गिना जाएगा। मतलब आज सेशन खत्म हुआ, 20 दिन बाद स्टार्ट हुआ, तो जो 20 दिन है ना उसको हम लोग निकाल देंगे। इफेक्टिव दिन गिने जाएंगे 4 दिन के अलावा, कि भाई ये 6 महीने गिनेंगे जिस दिन हाउस काम कर रहे हैं। वो पॉइंट है वो। ठीक है सर, थैंक यू। नीचे चालू कर सकते हैं क्या आप? अकम्प्लिश मैम। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। इसमें एक और पूछता हूँ मैं, जो ये बजट से रिलेटेड है, एक स्टेटमेंट है, तो ट्रू फॉल्स बताना। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस, इंक्रीज और एबॉलिश अ टैक्स इन द बजट। Yes. पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज। It's false. हाँ, करेक्ट। Mhm. पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज, ओनली गवर्नमेंट कैन Can इंक्रीज। एग्जीक्यूटिव्स का काम है। Okay. Sorry. एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो दो तरीके से डिफाइंड है। एक चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। चार्ज एक्सपेंडिचर पे वोटिंग नहीं होती है। जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास होता है, और बाकी जो रेस्ट है वो सारे चार्ज मेड अपॉन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और फिर चार्ज एक्सपेंडिचर में वो आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जजेस की सैलरी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं उनके वहाँ के उनके फंड्स वगैरह। यस, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के चार्जेस जितने भी होते हैं, सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशंस एंड ऑल, ये सारे ही चार्ज अपॉन होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
और मेड फ्रॉम में जनरली बजट की रिक्वायरमेंट्स और अप्रोप्रिएशंस वगैरह होती है, जिसकी पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। चार्ज चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए जो बिल लाते हैं उसका नाम क्या होता है? एप्रोप्रिएशन बिल हाँ होता है क्या? आप हाँ मनी बिल बोलते हैं वैसे तो, पर दैट इज पार्ट ऑफ द बजट, तो अप्रोप्रिएशन बिल भी सही है। अप्रोप्रिएशन बिल की तो वोट होती है ना। हाँ, अप्रोप्रिएशन बिल पे वोट होती है, पर ये वाला जो पार्ट है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द वोटिंग। सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट और एक्सेस ग्रांट में डिफरेंस बता दो कोई। सफिशिएंट होता है। एडिशनल तब होता है जब कोई न्यू सर्विस लाई जाती है। और दूसरा कौन सा? एक्सेस ग्रांट पूछ रहे थे क्या सर आप? सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस, मतलब इनका डिफरेंस बता दो। हम्म, तो ये दो तो मैम ने बता ही दिए थे। बता दीजिए। एक्सेस वही है। बोल रहा है क्या कोई? आवाज ही नहीं आ रही। एंट्री जब तब होता है जब जो फंड है वो इनसफिशिएंट रहे। एडिशनल तब होता है जब कोई न्यू सर्विस लाई जाए बीच में और उसके लिए फंड ना हो। और जो एक्सेस होता है कि हमारे फंड खत्म हो गए हैं, इसलिए हमको फिर से वोट करवा के और फंड चाहिए बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। रॉन्ग राइट? आवाज क्लियर नहीं आ रही है किसी की, सो आई ट्राइड एग्जिटिंग एंड दोबारा ज्वाइन किया। फिर आवाज तो आ ही नहीं रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है साइलेंट है ग्रुप। नहीं, अभी बोल रहे थे कोई, आई थिंक मंजुषा was saying something but she was not clear. ओके ना, मतलब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अब आ रही है आवाज। एक क्वेश्चन बताओ कि who is the head of the parliamentary states, ESTATES? सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। No sir, no, please try.
स्पीकर होगा ना सर? हाँ, स्पीकर है पूरे पार्लियामेंट स्टेट का। कंफ्यूज मत होना, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता। और प्रेसिडेंशियल स्टेट्स के प्रेसिडेंट होते हैं खुद। आई थिंक ये पार्लियामेंट वाला चैप्टर हो गया है सफिशिएंटली डिस्कस। इसके बाद वाला चैप्टर देखें क्या? एक क्वेश्चन और था, कास्टिंग वोट स्पीकर के पास होता है और हाँ, वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है, मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास नहीं होता है। हाँ, वो मेंबर नहीं ठीक है। होता है ना, इस वजह से उसके पास नहीं होता है, क्योंकि हाँ, ट्रू, मेंबर नहीं होता है वो। क्योंकि ही इज नॉट द मेंबर ऑफ आरएसजेएम। ओके, और स्पीकर के पास वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस अवेलेबल नहीं होता है, और सेम इज विद द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट अवेलेबल नहीं होता है दोनों के पास। स्पीकर के पास नहीं होता ना। स्पीकर के पास एक इंस्टेंस में हो सकता है, व्हेन ही इज एक्चुअली फेसिंग हिज ओन, मतलब रिमूवल प्रोसेस। तो उस केस में वो स्पीकर चेयर नहीं करता है चेयर पे, ही इज एक्टेड एज ऑर्डिनरी मेंबर, तो ही इनका कैन वोट इन रिमूवल फर्स्ट प्रोसेस इंस्टेंस इन दैट। इनका रिमूवल प्रोसेस में कौन सी मेजोरिटी यूज में ली जाती है स्पीकर के रिमूवल में? इफेक्टिव मेजोरिटी। कौन सी मेजोरिटी? इफेक्टिव। वैकेंसीज क्या को होती हटा है के, इफेक्टिव मेजोरिटी? वैकेंसीज को टोटल हटा नंबर के। से वैकेंसीज को हटा के जो बनती है इफेक्टिव मेजोरिटी। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस द वैकेंसीज। ओके, टोटल मेंबरशिप में से वैकेंसीज को हटा देंगे, उसके बाद उसका जो 1/2 + 1 जो होगा, दैट इज बेसिकली इफेक्टिव मेजोरिटी, जो कि लोकसभा स्पीकर या फिर वाइस प्रेसिडेंट या फिर स्टेट असेंबली के जो स्पीकर वगैरह होते हैं उनके लिए यूज में ली जाती है। सो कंक्लूजन ये था कि स्पीकर के पास दोनों वोट्स होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के पास एक भी नहीं होता है। करेक्ट? करेक्ट। यस, ट्रू। फर्स्ट इंस्टेंस में स्पीकर अपने रिमूवल प्रोसेस में वोट कर सकता है, और जनरली ही हैज अ कास्टिंग वोट, मतलब सेकंड इंस्टेंस में अगर कोई टाई वगैरह हो रहा हो तो। इसके बाद टॉपिक्स की लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर वाला पार्ट दिख रहा है, वो पार्ट देख ले। पार्लियामेंट आई थिंक भी कंप्लीट सॉरी, एक करेक्शन। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास कास्टिंग वोट तो होता है। सॉरी फॉर दैट, इसलिए क्लब नहीं कहा था। कास्टिंग वोट होता है, ही डज नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, बट ही हैज कास्टिंग वोट। ऑलराइट। ओके, हेलो, सॉरी आई वाज नॉट देयर। क्या डिस्कस हुआ अभी? पार्लियामेंट हो गया क्या डिस्कस कंप्लीट और स्टिल गोइंग ऑन? हाँ, हो गया पार्लियामेंट लगभग खत्म। हो गया? ओके, तो ठीक इसके है, बाद आई वाला कर लेते हैं। ठीक है। बस 5 मिनट और, ठीक है, फिर वी विल लाइक सम अप विद दिस चैप्टर, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो जॉइंट सिटिंग इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 108। 108 इज आर्टिकल नंबर। द नेक्स्ट थिंग इज, जो जॉइंट सिटिंग हुई थी, जॉइंट सिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम किस बिल के लिए हुई थी या कब हुई थी? द ईयर आई वांट टू नो बेसिकली। डाउरी बिल के लिए हुई थी। परफेक्ट, नाइस। ईयर? सो नेहरू जी रिमेंबर बताइए। 19
सी ईयर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक है, तो ये इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, इधर उधर भी नहीं होना चाहिए, मतलब 56 57 नो 60 एग्जैक्ट शार्प 60। ओके, उसके बाद अनदर क्वेश्चन इज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा decides the joint sitting along with the speaker of the Lok Sabha, true false? false है। ठीक है, आप लोग इसको बंद कर देते, ठीक है, आई हैव टू गो, तो ये एक बार पार्लियामेंट वाला यहीं पे कंप्लीट करते, ठीक है, फिर स्टेट वाला स्टार्ट।